Okay, so we were doing this chapter in the last class, chapter number 3, knowing Windows 10. And in the last class, we have seen the features, the special features of Windows 10, which were introduced in Windows 10 only and which were not there in Windows 8 and Windows 7. And today we have to start from here, Windows desktop. So this always desktop always remains same irrespective of whatever the windows you have, Windows 7, Windows 8, Windows 10, whatever the windows you have, desktop will always remain same. What like for example, always on the left hand side corner you will get, bottom corner you will get a start button. Just like I am also having start button here, left hand side bottom corner. And on the right hand side task bar, in the task bar this gray area is called as task bar. ये जो gray area है, this is called as task bar. ठीक है, टास्क बार भी सब में होती है. देन टास्क बार के राइट हैंड साइड में क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया वेयर यू विल गेट द टाइम, ये डेट एंड टाइम भी आता है. और अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है या इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है तो वो सारे आइकन्स भी आते हैं. प्लस देयर इज वन पीक बटन. पीक बटन कौन सा होता है, कॉर्नर में व्हेन यू विल ब्रिंग योर कर्सर टू द मोस्ट right hand side corner, bottom corner, then and if you will click over there you will directly come back to the desktop. Irrespective of whatever the applications you have opened, it will get minimized automatically and you will reach to the desktop. ठीक है, तो दिस बटन इज कॉल्ड एज पीक बटन, जिससे हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आ जाते हैं विदाउट इवन मतलब गोइंग टू द मिनिमाइज बटन. ऑल्दो वी हैव अ मिनिमाइज बटन ओवर हेयर इन एवरी विंडो, बट लेट से आपने 5-6 एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं, यू नीड नॉट टू मिनिमाइज देम वन बाय वन. You can just directly click on the peak button and your desktop will open, right? Okay, so this is notification area. And wallpaper and background, everybody know whatever the background is there in on your desktop. Like I am having the Windows background only, and you can also call it as a wallpaper. You can insert any image in the background or wallpaper. This area is called as wallpaper or background area. And the icons which we see on the desktop are called icons. The buttons, like these pictures which you can see on the desktop, these are called icons of different applications. ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन होती है, लाइक इट कुड बी टक्स पेंट, इट कुड बी कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं आपके कंप्यूटर में, these are called the icons for of those applications. Right. So Windows desktop background will always remain same for every type of window, irrespective of you are using Windows 7, 8 or Windows 10. Right. Taskbar, which is located at the bottom of the screen, was first introduced with Windows MS Windows 95. So जो 95 वाली Windows आई थी, which was I think the second version of Windows. No, this was a third version of Windows. तो थर्ड विंडोज में, थर्ड वर्जन में हमारे पास टास्क बार आ गया था. ठीक है, एंड फाउंड इन ऑल द वर्जन फॉलोड बाय 95. तो जितने भी वर्जन अभी तक हमारे पास आए हैं 95 के बाद, दे ऑल आर हैविंग दिस टास्क बार. ठीक है, द टास्क बार अलाउ द यूजर टू एलोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम थ्रू स्टार्ट बटन. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि वी कैन ऑल्सो लॉन्च द प्रोग्राम थ्रू स्टार्ट बटन, क्योंकि स्टार्ट बटन जो हमारा होता है वो टास्क बार में होता है. तो वी कैन इजिली क्लिक ऑन द start button and we can search for the application which you wanted to open, and you can directly click on that application, right? So this is the use of taskbar. So basically हम इसको use करते हैं to start button को use करने के लिए. Next is in Windows 10. These features are Windows 10, in 10 only. Search button is there. Otherwise, in Windows 7, we were having a search bar over here. But Windows 10 में we are having a search button or search bar in the task bar only. ठीक है, and then
दिस इज टास्क व्यू. टास्क व्यू मीन्स आपके अभी जो भी एप्लीकेशन ओपन है उनको आप देख सकते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन करंटली ओपन है. लाइक विंडोज 7 में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऐसे दिखा रहा है. यहाँ पर एक टास्क बार आता है, उसी के अंदर सारी एप्लीकेशन आ जाती है. एंड कॉर्टोना फीचर जो मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी बताया था, इट वर्क्स लाइक अ सिरी. जैसे आप सिरी होता है एप्पल के फोन्स में, उसको हम बोलते हैं कि ओपन दिस एंड ओपन दैट. तो सिरी हेल्प यू टू ओपन एंड सर्च ऑल दीज मतलब कमांड्स विच यू गिव. तो वैसे ही कॉर्टोना जो है इट वर्क्स इन द सिमिलर वे. ठीक है. नोटिफिकेशन एरिया मैंने आपको बताया ही, जहाँ पे आपका वाईफाई से कनेक्टेड है या ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, या आपका अगर ये स्पीकर ऑन है ऑफ है, ये सारी चीजें जो आती है दैट इज नोटिफिकेशन एरिया. उसके साथ में क्लॉक होता है. देन एक्शन सेंटर होता है. दिस इज एक्शन सेंटर जिससे आप सेटिंग कर सकते हो विंडोज 10 की. ये सिर्फ विंडोज 10 में होता है. लाइक आई एम यूजिंग विंडोज 7, तो मेरे पास कोई एक्शन सेंटर नहीं है. आपके पास एक्शन सेंटर होता है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन आता है यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड एज एक्शन सेंटर. ठीक है. इफ यू आर हैविंग विंडोज 10 एंड द कॉर्नर बटन इज कॉल्ड पीक बटन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाउ इट वर्क्स. इट विल ब्रिंग यू टू द डेस्कटॉप डायरेक्टली. Now, these are the commonly used icons which you can see in almost all types of windows on the desktop. This is an icon of my computer, so you can open all the drives in your computer. This is a shortcut key. Like I'll show you how it looks in my system. This is the icon. From here I can open and check all my drives. So this is a shortcut key for gateway to data stored on your computer. ठीक है. और and if any other devices attached to the network, then it is a gateway. मतलब ये एक रास्ता है, आप ये सारी चीजें देख सकते हो. ठीक है. It mainly allow you to explore and manage the content of your computer drive. तो आप इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में जो भी कंटेंट है, जो भी सेव किया है, उसको मैनेज कर सकते हो. दिस इज अ आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि एक ब्राउजर है. इट्स अ ब्राउजर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विंडोज ओनली. तो ये विंडोज 10 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन आएंगे विंडोज के, उसमें मिलेगा, लेकिन उससे पहले वालों में नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये विंडोज 10 का फीचर है. माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ ब्राउजर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इज देयर इन विंडोज 10. ठीक है. तो उससे पहले वाले, लाइक आई डोंट हैव माइक्रोसॉफ्ट एज. ठीक है. आई कैन यूज ब्राउजर. बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी यूज. जैसे ब्राउजर किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम इंटरनेट से में से कुछ भी सर्च कर सकें. ठीक है. तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, गूगल क्रोम यूज कर सकते हो. सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ब्राउजर बनाया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज. ठीक है. जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो एंड यू कैन सर्च एनीथिंग ऑन द इंटरनेट. ठीक है. दिस इज रिसाइकल बिन, जो कि विंडोज 10 में आई थिंक ऐसी दिखती है, बट इफ आई शो यू माय रिसाइकल बिन, देन इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है. so you can make it empty, and then after making it empty it will look like this. So this is my recycle bin in Windows 7, but in Windows 10 it looks like this. Right. Next is, after that, next is net. This is the icon of network. Allow you to access shared files and folders or devices on different computers in a network. So if your computer is on network, you can directly click on, like it looks like this in my computer, Windows 7. This is Windows 7. So I can directly click on this and I can check how many devices are connected. Or if I am on the network, then how many computers are connected to the network. So I can access these 4 computers through my computer, because my system is connected to a network, right? So using this network area, you can connect your computer with other computers, and this is a shortcut to open that area. Open the other devices which are attached to your computer. And this is a icon of a Word file. So Word program everybody is already aware of. In the last chapter we have also used Word program. So using Word program, you can just create anything like application or a poster or a invitation card. So this is a shortcut key for Word program. And this is the icon of the folder. This is the icon of the folder.
राइट। एंड दीज आइकन, मतलब इस टाइप का कोई भी आइकन, जैसे आई विल शो यू, वर्ड के अलावा अगर कोई भी आइकन होता है तो वो पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट आइकन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आइकन, ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का, तो दिस इज, इट मीन्स इट्स अ वीडियो फाइल और ऑडियो फाइल विच यू कैन प्ले इन द विंडो मीडिया प्लेयर, ठीक है, और विच यू कैन प्ले इन वीएलसी प्लेयर, वॉट एवर द प्लेयर्स यू हैव, जिसमें आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसका है। ये सपोज मेरे सिस्टम में एक वेब कैम इंस्टॉल्ड है, तो ये उसका सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनका आइकन आ जाता है आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है, एंड दैट इज अ शॉर्टकट फॉर दोज आइकन। और दिस एवरीबडी इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ, ये गूगल क्रोम का आइकन होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है हमारे सिस्टम पे। इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा ब्राउजर है। आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, आपके पास गूगल क्रोम है, और अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी होगा। सो इट इज टू डिफर, इट विल डिफर फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। नेक्स्ट इज नाउ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू में वी कैन एक्सेस वेरियस एप्लीकेशंस। जितने भी सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, यू कैन ओपन एंड यू कैन यूज दोज एप्लीकेशंस through start menu. So this is a button of start menu. From here you can go to all programs and you can check how many are available in your computer, how many applications or softwares are installed in your computer, and then you can click and you can use them. Okay, so start menu is a shortcut to open all the applications in your computer. Okay, you can use mouse to click on the start menu, or there is a button also on the keyboard जिसमें window जैसा sign बना होता है. You can also click on that button. Like suppose, let's say my cursor is here right now and I wanted to open the start menu, so I am pressing a key from my keyboard and that is Windows key. So start menu will open. ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर दिखता है, जैसा ये वाला आइकन है इसकी तरह ही दिखता है कीबोर्ड पे जो बटन होता है। ठीक है, एंड now, what is the different feature of Windows 10 in the start menu? Left pane में क्या है हमारे पास? It resembles the traditional start menu from Windows 7 and earlier. तो ये बिल्कुल सेम दिखता है जैसे हमारे पास Windows 7 में होता था। लेफ्ट वाली साइड सेम है, राइट वाली साइड थोड़ी सी डिफरेंट है। Live tiles in Windows 10 display information that is useful at a glance without opening an application. तो राइट साइड में यहाँ पे कुछ डिफरेंट आता है, जिसमें आपको वो सारी एप्लीकेशंस दिखाता है जो कि आपके लिए यूजफुल है और जो आपने रिसेंटली ओपन करी है। तो वो सारी आइकन्स, वो सारी जो टाइल्स हैं, वो यहाँ पे लाइव टाइल्स की फॉर्म में आ जाती हैं, विच यू कैन डायरेक्टली ओपन and it works like a shortcut key to visit to those applications. ठीक है, next is the things you can do in the left pane are, जो जो हम लेफ्ट पेन में हम जो जो काम कर सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? क्लिक ऑन द यूजर नेम एट द टॉप ऑफ द मेन्यू टू चेंज अकाउंट सेटिंग और लॉग इन विद अनदर यूजर। ये जो टॉप पे होम कंप्यूटर हो पा रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो? आप अपना चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने अभी लेट्स से मैंने लॉगिन किया एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से और मुझे अब स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करना है, तो आई कैन स्विच द यूजर। मेरे सिस्टम में लेट्स से 4 यूजर्स हैं, तो आई कैन स्विच की मैं यूजर 1 से लॉगिन करना चाहती हूँ या यूजर 2 से। इनका बेनिफिट क्या होता है इतने सारे यूजर्स बनाने का? इसका बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से कि जो बच्चों वाला, स्टूडेंट्स वाला अकाउंट है, उसमें मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ एप्लीकेशंस विजिबल ना हो, या फिर उनका डेस्कटॉप में जो बच्चे सेव कर रहे हैं सिर्फ वो ही दिखे, एंड इफ समथिंग टीचर इज सेविंग ऑन द डेस्कटॉप तो वो बच्चों को विजिबल ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हैं, टीचर्स अकाउंट एंड स्टूडेंट्स अकाउंट। तो टीचर्स जो सेव करते हैं वो उनके डेस्कटॉप पे आता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं होता। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पे सेव करते हैं अपने फाइल्स, वो टीचर्स डेस्कटॉप पे सेव मतलब अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग मोर देन वन अकाउंट. So we can switch to user account by clicking on this button. Access applications you use more frequently, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा लिखा भी हुआ है मोस्ट यूज्ड। तो ये यानी कि एप्लीकेशंस वो वाली है जो सबसे ज्यादा हमने यूज करी है।
ठीक है, अ स्मॉल एरो नेक्स्ट टू एप्लीकेशन विल ओपन द सब मेन्यू। अब इनके आगे छोटा छोटा मेन्यू आ जाता है, मतलब आपने लेट से आपने टेक्स्ट पैड ओपन किया था और टेक्स्ट पैड में आपने ओपन किया 3 डिफरेंट फाइल्स, लास्ट जो आपने ओपन करी थी 3 डिफरेंट फाइल्स, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इट विल शो यू नेम ऑफ ऑल द फाइल्स एंड यू कैन डायरेक्टली ओपन विदाउट सर्चिंग दैट फाइल। ठीक है, कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। तो दिस इज easier way to find out your recently opened document जो आपने अभी सबसे recently यूज करे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर भी होता है। फाइल एक्सप्लोरर का मतलब है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स पे नेविगेट कर सकते हैं इजीली, लाइक दिस वन। कंप्यूटर पे जाते हैं तो इस दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें मुझे जाना है डेस्कटॉप पे तो आई कैन क्लिक हेयर, इफ आई वांटेड टू गो डाउनलोड्स आई कैन क्लिक हेयर, इफ आई वांटेड टू गो टू डॉक्यूमेंट्स आई कैन क्लिक हेयर, सी ड्राइव डी ड्राइव जहां भी जाना है तो यू दिस इज द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है। प्राइमरी क्लासेस को ओपन करना है, क्लास 5 को ओपन करना है, तो वट एवर द फोल्डर यू वांटेड टू ओपन एंड विच एवर द फाइल यू वांटेड टू ओपन, राइट। तो ये फाइल एक्सप्लोरर होता है। तो ये सेम है 7 में भी और 10 में भी, तो देर इज नो चेंज। नेक्स्ट इज चेंज द सेटिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की सेटिंग्स भी यहाँ से ही चेंज हो सकती है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना है, वाईफाई ऑन करना है या वायर्ड कनेक्शन करना है, तो ये सारी सेटिंग्स का ऑप्शन भी यहाँ पे देखो, ये सेटिंग्स आ रहा है तो सेटिंग्स का ऑप्शन भी यहाँ पर होता है। अब मेरे में देखो यहाँ पे सेटिंग, बिकॉज आई एम यूजिंग विंडोज 7 तो मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज अ फीचर ऑफ विंडोज 10। नेक्स्ट इज सी डिफरेंट ऑप्शंस टू शट डाउन योर कंप्यूटर। शट डाउन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस तो विंडोज 7 में भी होते हैं, लाइक दिस वन, स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप एंड हाइबरनेट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, पावर ऑफ करने का, रीस्टार्ट करने का, ये ऑप्शंस हमारे पास विंडोज 7 में भी होते हैं स्टार्ट मेन्यू पे ही, और विंडोज 10 में भी हमारे पास यहीं पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्ट द see a list of all the applications installed in your computer। yes definitely, जितने भी हमारी applications ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनकी लिस्ट भी यहाँ से ही ओपन होगी। ठीक है, तो these were the things which you can do with the help of start menu। next is universal app of windows 10। universal app of windows 10 क्या है? जो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि सिर्फ विंडोज 10 में मिलेगी आपको और किसी विंडोज में नहीं मिलेगी उनको, या जो बहुत पॉपुलरली यूज हो रही हैं, बिल्ड इन एप्लीकेशंस हैं आपके डेस्कटॉप पे। जैसे फोन में क्या होता है, हमारे को डाउनलोड करना पड़ता है। लेट्स से मुझे अलार्म लगाना है, अलार्म लगाने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है एंड देन ओनली यू कैन सेट योर अलार्म। तो विंडोज 10 में हमारे पास कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अलार्म, क्लॉक, कैलेंडर, फोटोज, वेदर। अब देखो मेरे सिस्टम में यहाँ पे ना विंडोज, बिकॉज आई एम हैविंग विंडोज 7, तो मेरे पास अलार्म का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास मैप्स का ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टली मैप अगर ओपन करने हैं तो आई हैव टू सर्च ऑन गूगल क्रोम, और अगर मुझे कैलेंडर ओपन करना है तो कैलेंडर आई हैव, ये देखो यहाँ से कैलेंडर तो ओपन हो जाता है, कैलेंडर आई हैव। बट मेरे पास फूड एंड ड्रिंक की एप्लीकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, न्यूज का शॉर्टकट नहीं है कोई भी, मैप्स का भी नहीं है, अलार्म का भी नहीं है। कॉर्टोना फीचर तो विंडोज 10 का फीचर है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। म्यूजिक का कोई, मतलब म्यूजिक की एप्लीकेशन है बट उनका कोई ऐसा ग्रूव म्यूजिक करके कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर रखी है वीएलसी प्लेयर, आई कैन यूज दैट एप्लीकेशन ओनली। Similarly, I don't have a clock, so I have like this is a clock only because यहाँ पे देखो clock भी आ रही है, तो this application I have। ठीक है, तो बहुत सारी फीचर्स हैं जो आपको विंडोज 7 में नहीं मिलेंगे बट विंडोज 10 में मिल जाएंगे एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। तो विंडोज का स्टोर भी है हमारे पास, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन में एंड्रॉयड मार्केट होती है जिसको हम गूगल प्ले स्टोर बोलते हैं। सिमिलरली विंडोज आर आल्सो प्रोवाइडिंग द स्टोर जहां से आप फ्री एप्लीकेशंस, गेम्स, म्यूजिक, मूवीज डाउनलोड कर सकते हो। बट एज आई एम हैविंग विंडोज 7 तो आई डोंट हैव एनी सच स्टोर जहां से मैं ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकूं। ठीक है, सो दिस इज अ फीचर ऑफ अगेन विंडोज 10। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ शटिंग डाउन ऑफ विंडोज। दिस इज अगेन वेरी सिंपल।
राइट, तो शट डाउन करना इज एज सिंपल एज, मतलब जैसे आप 7 में करते हो, 8 में करते हो, एवरीथिंग इज सेम, nothing is different here. You can also press, अगर आपको शट डाउन करना है तो you can also press Alt plus F4, बट ये आप 7 में भी कर सकते हो, 8 में भी कर सकते हो, किसी भी विंडोज में कर सकते हो. You can press Alt plus F4. जैसे ही आप Alt plus F4 करोगे, जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होती है ना वो क्लोज हो जाती है. ये सिर्फ एप्लीकेशन क्लोज करता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी जो मैंने पीडीएफ फाइल ओपन कर रखी थी चैप्टर 3 की, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई. तो जिस भी फाइल पे आप क्लिक करोगे, it will get closed by pressing Alt plus F4. ठीक है, अब विंडोज को शट डाउन करना है तो पहले आपको सारी एप्लीकेशंस को क्लोज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल शट डाउन द विंडो, राइट. टू ओपन शट डाउन विंडो डायलॉग बॉक्स. अब जब सारी एप्लीकेशंस आपकी क्लोज हो जाएंगी, लाइक I cannot press Alt plus F4 right now because Zoom meeting is going on. Otherwise, if I'll keep on pressing Alt plus F4 तो Zoom meeting भी over हो जाएगी, Google Chrome open है वो भी close हो जाएगा, सारी चीजें close हो जाएंगी. ठीक है, तो आप जब सारी एप्लीकेशंस जब एक बार क्लोज हो जाए, एट दैट टाइम यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस F4, तो आपके पास विंडोज शटडाउन मेन्यू आता है विच कुड अपीयर लाइक दिस, जैसे ये वाला. तो यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन this shutdown button, or I am having different options also, I can click on these options. So you similarly you will also get this type of menu, and you will be able to shut down your restart or whatever you wanted to do. ठीक है, and second option is either you can do in this way, or you can go to the start button and there is a shutdown button, so you can click on that. ठीक है, पावर बटन. अब विंडोज 10 में इसको, यहाँ पर मेरे पास विंडोज 7 है, तो आई एम हैविंग अ शटडाउन बटन, लेकिन आपके पास विंडोज 10 है अगर, तो विंडोज 10 में पावर बटन होता है. दिस इज द पावर बटन, सेटिंग्स के नीचे वाला जो होता है दैट इज पावर बटन. तो पावर बटन होता है फ्रॉम वेयर यू कैन शट डाउन योर सिस्टम. now in shutdown, when you will shut down your system, you will get a different options. आप शट डाउन करना चाहते हो, आप उसको स्लीप मोड पे करना चाहते हो. स्लीप मोड पे करने से क्या होता है, पावर कंजप्शन जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो यूज रिड्यूस हो जाती है. आपका कंप्यूटर की सारी एप्लीकेशंस जो आपने ओपन कर रखी हैं वो ओपन रहेंगी, वो क्लोज नहीं होंगी. इट विल रिमेन ओपन, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी. ठीक है, एंड रीस्टार्ट, एवरीबडी नो रीस्टार्ट क्या होता है. आप सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, यू वांट टू क्लोज ऑल द एप्लीकेशन एंड यू वांट टू रीस्टार्ट योर सिस्टम. so these are the basic three operations which normally we use, and this is the end of the chapter. In this chapter we have learned few functions or features of Windows 10, right? And in the next class now we will be doing the question answers of this chapter. I hope it is clear to everyone.